What's up guys, Chetan Hansraj here. You're watching me on Be Blunt podcast. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. Badass villain of TV industry is actually a soft-hearted, emotional person. Chetan, welcome to Be Blunt podcast. Oh, I'm so glad to be out here, KK, and so glad to meet you after so long. चेतन मुझे बताइए कि विवेक ओबरॉय से मुलाकात होती है? विवेक नहीं भाई. मेरे कॉलेज में था वो. When I had just entered college, so I had seen him in one dance performance he had done, and that boy had done dance performance. Then he had gone to the play, and then everything he was a part of. Okay. So very talented boy. So भाईजान सुन रहे सब. You started your career, the biggest famous role you can say is a Sasha, right? Yeah. People know you by Sasha. Yeah. तो ये साशा और चेतन हंसराज में कितना डिफरेंस है in real life? Sasha was one of my favorite characters. Very real, very over the top, you know, stylish. Very much like me, you know. I'm very also like glamorous, very this, but very normal also. But yeah, Sasha was very evil. I'm not very evil, KK. Except when I get angry, then I'm like. That's the audition. So Sasha was negative through and through. It was not negative as such. He was cheated from his properties and everything. So he kind of wanted it all back, and he felt कि भाई हमारी family की सारी properties ले गई है. Then he wanted his properties back. So I mean it's not out and out bad. Kind of justified. यार मुझे एक बात बताना कि ये नेगेटिव रोल कंटिन्यू करने के बाद क्या एक्टर टाइपकास्ट हो जाता है नेगेटिव के लिए? लाइफ में ना अगर आप टाइपकास्ट हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. Okay. Who do you remember from the past? Devanand, Rajesh Khanna, all these guys remember why? What is Amitabh Bachchan? Angry young man, typecast. Yeah. So when you're typecast, that means the first person they think about is you. So why wouldn't you want to be typecast? So लोग बहुत उसको नेगेटिव लेते हैं. मैं तो उसे बहुत पॉजिटिव लेता हूँ कि भाई अगर किसके दिमाग में ये कैरेक्टर आ रहा है और वो सोचते कि भाई चेतन हंसराज को लेते हैं, that's like a पॉजिटिव है. आज के ज़माने में कौन किसको याद रखता है? You know, attention span इतने छोटे हो गए हैं, and you know there are so many people who are acting. So the minute you are getting typecasted in a particular role, it's fabulous, and I'm getting typecast in a very big genre, right? Villain चाहिए तो call चेतन हंसराज. तो it's not like अरे ये एक विलन में भी एक स्पेसिफिक चीज में मुझे कोई टाइपकास्ट किया है. It's like a generic thing. Okay, you need an angry guy, yeah, this, that, a villain, versatile, yeah. So luckily I have never done a role which is similar to each other. हर एक रोल में अलग ये विलन है, लेकिन अलग विलन के किरदार हैं. So that way it's kind of I've consciously not taken up roles. Like right now also I got an offer to do another role I'd done previously in 2022. So I didn't take up this role. It was a big meaty role, but I didn't take it up because I know okay, if I just take up this kind of a character again, then that typecast is different from what typecast I want to be. Is like, okay, for villain, okay, you'll call Chetan Hansraj. Not for a specific character type. So I make sure that I don't do that kind of roles again. So Chetan, you are a Bandra boy, right? Yeah. तो ये तो SRK के बंगले के बाहर, अभी जैसे हम SRK का बंगला discuss कर रहे हैं, what's up, bro? शाह सर के बंगले के बाहर कभी तुम खड़े हुए हो या कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं भाई. Sorry to disappoint you, लेकिन मैं नहीं. लेकिन मैं रोज जॉग के लिए आता हूँ यहाँ बैंड स्टैंड, ब्यूटीफुल बैंड स्टैंड पे. तो सलमान का घर बैंड स्टैंड के उस साइड पे है और SRK का इस साइड पे है. तो सलमान से लेके SRK तक मैं जॉगिंग करता हूँ. So पूरी इंडस्ट्री इसमें आ जाती है. Do you have a funniest moment with SRK और सलमान भाई? सलमान भाई तो I have shared lot of amazing moments. Any recent incident with Salman bhai? Recent incident with Salman bhai, that day I was on my bike going to the gym, and Salman bhai was cycling. So we had a chit chat while he's cycling, and he's like, oh, where are you, bro? I said, I'm hi, all good, and this, that. So we had a small chit chat while all the police vans and all are behind, you know. Yeah, he got a lot of security. So it was great fun, yeah. Like Salman bhai, always I've gone to his farm so many times, and I think in this industry, for me, the sweetest guy, the most loving guy is Salman bhai, because he's the most real. जी. बाकी लोग बहुत pretentious हो जाते हैं and they want to portray like I'm a star. Salman bhai is a star, like a superstar. He doesn't have to portray or behave like one. So that's the beauty of him, and the first thing my meeting with him was मैं बॉडीगार्ड में शूटिंग कर रहा था and Salman bhai told me कहाँ जा रहा है? लंच टाइम था.
तो ऐसे भाई लंच करने जा रहा हूँ, आजा मेरे साथ बैठ जा। चलो ओके भाई। So next day again lunchtime, so I thought guests and all that, he had guests and all that, Suhas guy and Kannara, all had come to meet him and all that. So I went, पीछे के साइड से मैं चला गया। I don't want to disturb, right? Mohan, his spot दादा, he's like, अरे कहाँ हो भाई, आपको रोज इनविटेशन देंगे। तो ऐसे नहीं वो गेस्ट आए। He remembers everyone so much. Called me over there and he's like, what, I'm going to call you for every day or invitation. Come and sit and have lunch with me. I said, no, bhai, you have guests and all that. He says, they've come to get work from me. You're working with me. Come sit, enjoy. I'm like, okay. So he respects his friends. Arey, dude, he's loving and one of the best guys I've met in the industry by a long way. कभी कुछ pornography या कभी कुछ मैगजीन पढ़ते हुए पकड़े गए या ऐसे कुछ? नहीं, not really. गांधी जी वाला सच? कौन यार के मैं कुछ वैसा हूँ क्या? नहीं ना, of course देखी है यार. अच्छा. My first magazine, funny thing is that, so I was young, so I must have been about 16, 17. One morning I get up and all, and suddenly I came into my balcony, lovely balcony. There's some Playboy magazine over there. So I'm like, oh shit, yaar, ye kya hai yaar, kaun? My dad only had kept it. So my dad is really cool. My dad is really cool, you know. So nice. So he's like, first thing only he kept a big Playboy. I was like, whoa, what is this? Like, you know, I'm like, wow, ye kisne diya? So then after a couple of days, my dad like, so you got the magazine? I was like, oh god, dad, bus yaar. So he's luckily I've been brought up in a very cool family. You know, my mom's a doctor and dad's a so they are very, very, very chilled out, very cool. तो ये स्कूल में भी ले जाते थे मैगजीन? नहीं भाई, घर पे ठीक है। पक्का? So tell me one thing, कि what you love the most about Bandra? I love that Bandra people are very cool. किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, शाहरुख खान या सलमान खान आ जाए तो यहाँ पे अफरा तफरी बन जाती है, लेकिन वो भी जो लोग आते हैं, you know, मुंबई दर्शन के लिए, वो लोग पागल हो जाते हैं। If that day was Salman bhai was riding a cycle and all, कोई परेशान नहीं करे। यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट सबको देख लिया है इन्होंने। सो इट्स अ वेरी चिल्ड आउट प्लेस, ग्रेट कॉफी शॉप्स, वेरी नाइस वाइब के वेयर पीपल आर वेरी कूल, लाइक द कूलेस्ट पीपल इन बॉम्बे, मे बी इंडिया आल्सो। Tell me what is your John connection with you in Bandra? John, actually, I used to have a girlfriend in Jai Hind College. Oh. So I used to go there once in a while to meet her. तो ये गर्लफ्रेंड तुम्हारी थी या जॉन की थी? नहीं, मेरी ही थी. अच्छा. But when John used to want to come back to this side, he used to take a ride with me on the bike. So मतलब दोनों एक बाइक पे लड़की पटाने जा सकते हैं? नहीं, but very sweet guy. And उन जमाने में इंटर कॉलेज फैशन शोज बहुत हुआ करते थे, तो वी यूज्ड टू बी इन ऑपोजिट साइड्स, यू नो, इंटर कॉलेज फैशन शोज. Yeah. Oh. He used to be for Jai Hind, I used to be for Medibai both were College. stud ना, एकदम लंबे And चौड़े. that time the models were like next level. तो टशन चलता था तुम दोनों का? जॉन नहीं यार, हम लोग का सीन मतलब फ्रेंड्स थे बट कॉम्पिटिटर्स थे. Yeah, obviously during the show and all, show खत्म है, hey, what's up and all. John himself is a very nice guy. Great guy. He's got success and all so much because he's a really nice guy and very intelligent guy. तो ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता है, नो, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड ओवरऑल वेरी हम्बल. तो आई हैव नोटिस कि जो भी बहुत बड़े स्टार्स होते हैं ना, हमेशा बहुत हम्बल होते हैं. जो बीच के लोग होते हैं ना, वो उनका ये सब ड्रामा चलते रहता है. बाकी जो बिग स्टार्स, ऑल द पीपल हु रियली डू वेल इन लाइफ, दे ऑलवेज हम्बल. बिकॉज क्या है ना, अगर आप लोगों के ऊपर पैर रख के चलोगे ना, अपना माउंटेन क्लाइंब करोगे ना, जब नीचे आते वक्त ना सब लोग अपना कंधा हटा देंगे, यू नो, या तुमको वहाँ पे और धकेल देंगे नीचे. यू शुड ऑलवेज बी सपोर्टिव टू पीपल, encourage people. So that's my kind of motto and it's kind of held good. So tell me one thing, कि ये और ये जो कंधे पे पैर रखने वाले लोग हैं, वो कौन से, एक दो नाम तो बता दो. नहीं बेचारे अभी देख रहे होंगे तो थोड़ा अपना सर पटकेंगे. So many time I do a show like and then people are like, अरे वो सब लोग आ गए क्या, पहुंच गए क्या साइड पे? वो पहुंच गए साइड पे, चलो रुको 10 मिनट में आता हूँ. ये कौन से शो की बात है? But just the attitude of some actors that, you know, I want to throw my weight because I'm a main lead in this show. Or things are change होती है ऐसे ये इंडस्ट्री में. You know, life changes like this. The more basic you are ना, the longer your run is. Like it's been 45 years for me and I've always been basic.
यू नो मेरे कपड़े भी देखो मैं एकदम बेसिक ही पहनता हूँ, ना ही कोई बिग ब्रांड के कपड़े। उस जमाने में भी मैं स्कूल में कॉलेज में फैशन स्ट्रीट से कपड़े लेता था, आज मैं यहाँ से लेता हूँ कपड़े, नॉर्मल शॉप से लेता हूँ, क्योंकि आई डोंट बिलीव के ब्रांड्स विल मेक मी, वट एवर आई वेयर विल मेक दैट ब्रांड। सो आई जस्ट कीप इट वेरी नॉर्मल एंड लाइक अ नॉर्मल इंसान जैसे होता है ना, लाइक नॉर्मल कॉमन मैन इंडिया का, वैसा हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए, 45 इयर्स हो गए आपको इंडस्ट्री में, यू आर ट्रेंडिंग कंटिन्यूअसली, यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, टीवी में एक्टर्स ज्यादा सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट? यू हैव टू बी वर्सेटाइल फर्स्ट ऑफ ऑल। यू डोंट हैव टू बी अरे मैं हीरो हूँ तो मैं हीरो ही करूंगा, ओके मैं एक्टर हूँ, मैं हर एक रोल करूंगा। वही तो है ना एक्टर का, आपको एक जिंदगी में हजारों जिंदगी स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। आप सिर्फ एक्टर हीरो बनोगे तो आपको हीरो के रोल तो हमेशा नहीं मिलेंगे। यू नो यू नॉट सलमान खान और शाहरुख खान और maybe a John Abraham or someone who's so that's the only thing कि you have to be very versatile and you have to be very patient। आपको अगर 2-5 महीने काम नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया, ये ऐसा करोगे तो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है माइकल लाल जिसने नॉन स्टॉप काम किया है। ट्रू, यू नो तो यू हैव टू बी लाइक आई हैव डन ओवर अबाउट 60-70 shows, TV shows, but in that also ना there is a waiting period। जो like I do 2-3 shows a year like average में, but still there is a waiting period of couple of months in between shows। वो waiting period बहुत difficult है for an actor। You start doubting yourself, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये और 10 लोग आ गए, ये वो आजकल ऑडिशन नहीं होते, खाली वो इंस्टाग्राम के वो देखते हैं कि भाई तुम्हारे कितने हैं फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स बढ़ाना है तो दे दो। आजकल तो तुम 50,000 ऊपर डालोगे तो मैं 1 मिलियन का फॉलोअर मिल जाएगा, रोज आता है मेरे को SMS। नहीं चाहिए भाई। तो तुमने अपना इंस्टाग्राम वेरीफाई नेचुरली कराया है पैसे? नेचुरली काय का पैसा देके यार। ऑफ कोर्स, ये क्वेश्चन भी मुझे अजीब लग रहा है। I just that was the last time once I had sent my this को ID भेजना था, तो मैंने दिमाग में रखा था कि भाई ये लास्ट टाइम भेज रहा हूँ, करे तो करे वरना फटके। ओके, यू नो आई डोंट गिव अ डैम एनीमोर। तो मैंने भेजा तो हो गया। इट्स नॉट लाइक दे डोंट नो, यू नो आई मीन वो जानते हैं कि आप बाथरूम कभी जाते हो, नहाते कभी हो, पॉटी कब जाते हो, और तुमको ये नहीं पता कि ये इंसान ये है। दैट इज रियली फनी। मतलब दे ट्राई कि अगर पैसे दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज तो करना है। एग्जैक्टली। और आई डोंट बिलीव, तो मेरे कुछ ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। आप देख रहे हो तो फॉलो करना भाई, लेकिन मैं नेचुरल रखता हूँ। आई डोंट boost my post or give someone money or have a team of people who will up my post or boost my post। मैं नहीं करता हूँ। मेरे कुछ 34,000 सब्सक्राइबर्स है और फॉलोअर्स है, वेरी हैप्पी है। जैसे अभी आपने बोला कि ना फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट, मतलब सबके लिए स्टेबल नहीं होती है, लोग खाली बैठते हैं, तो ऐसी कभी लाइफ में पॉइंट आया जब यू आल्सो सिटिंग लॉन्ग खाली बैठे लंबे समय के लिए और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्रंचेस हुआ एंड फैमिली ने सफर किया? सो मेनी टाइम्स आई हैव गॉन थ्रू सच पीरियड्स, सो मेनी टाइम्स। जब एक्चुअली बालाजी में मेरी एंट्री हुई, उसके पहले मैंने एक पिक्चर की थी असंभव, तो वो पिक्चर खत्म हुई और उसके बाद हम स्विट्जरलैंड गए थे 2 महीनों के लिए। मजा आ गया, लाइक बहुत मजा आ गया। लेकिन जब वापस आए तो ऐसा लगा कि ब्लडी कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि 2 महीने के बाद आया तो फिर वो मॉडलिंग से भी लोग मेरा वो टूट गया था। वो जमाने में थोड़ी ना इंस्टाग्राम था, तो यू हैव टू गो एंड गिव योर पिक्चर्स एवरीवेयर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। तो 4-5 महीने में घर पे बैठा था, मैं बाल खींच रहा था, मैं शिव जी को प्रे कर रहा था, शिव जी प्लीज कुछ तो करो यार, आई मीन यू नो आप ही सुनते हो हमेशा, प्लीज डू समथिंग एंड ऑल। और पता नहीं कैसे 1 हफ्ते बाद मेरा दोस्त आया कुशाल, ही इज पास्ड अवे नाउ, बट कुशाल आया, उसने बोला कि चेतन चल। कहाँ जा रहे? अरे चल यार। गए ऑन द वे, मैंने कहा कहाँ जा रहे भाई बता तो सही। देखो ना बालाजी। बालाजी क्या है? उस हमारे तो पिक्चर का भूत था ना सर में सवार, तो बोला बालाजी कैसे डेली सोप्स एंड ऑल। अच्छा अरे यार मैं तो यार पिक्चर करना चाहता हूँ, ये सर जस्ट काम ही आया, जस्ट काम। गए वहाँ पे तो मैं एंटर किया, उसने बोला पिक्चर लेके चलना। मैं ऐसे गया अंदर, तो वहाँ पे वो एक जो लड़की बैठी थी, आई थिंक सोनिका और समवन वाज टेकिंग ओवर। आई वेंट ओवर देयर, टुक माय फोटोग्राफ ऐसे, आई जस्ट थ्रू इट लाइक दैट। तो वो लड़की देखती है ऐसे, एटीट्यूड, हाँ
तो ऐसे व्हाटएवर। हाँ, तो उसने ऐसा मेरा फोटोग्राफ लिया, बड़ी थप्पी निकाली है, ऐसे बड़ी एल्बम निकाली ऐसा, और ठप उसके अंदर डाल लास्ट दिया। में। हाँ, ऐसे अंदर बीच में क्या डाल दिया और ठप एल्बम बन गया। ओके यू कैन गो। तो मैं ऐसा ओके व्हाटएवर, ऐसा मैं उठ के चला गया। 2 दिन बाद मुझे फोन आता है कि मैम सॉ योर फोटोग्राफ एंड आई टोल्ड हर लाइक दिस इज ऑल्सो शी लाइक दैट एटीट्यूड, शी लाइक दैट एटीट्यूड। तो आई सेड कॉल्ड यू फॉर एन ऑडिशन। चला गया, ओके गए ऑडिशन में। मैम मींस तो- एकता मैम। हाँ एकता जी हाँ, है। हाँ। तो एकता मैम ने देखा, हाँ, तो ऑडिशन में क्या कहानी घर घर के सेट पे। अच्छा। तो ऐसे गया वहाँ पे, तो बोला वो नाइस सेट एंड ऑल। फिर गया वहाँ पे, दिया मेरे को 2 पेज का मोनोलॉग। मैं fucking हिल गया ब्रो, ये क्या है ब्रो, 2 पेज का डायलॉग। लाइक ओके, मैंने पहले के 2 लाइन पढ़े के सिर्फ 2 लाइन पढ़े पहले के, और फिर मैंने बोला ऐसे ये क्या डायलॉग बोला मैंने, और 2 लाइन बोली, बोला ओके आई एम डन। तो हिले, अरे सर अभी तो डायलॉग चालू हुआ है। ऐसे ब्रो ओके तुम लास्ट में मैं दे रहा डायलॉग वायलॉग, मुझसे नहीं होगा। ये 2 लाइन हो गई है, चाहिए तो लो। और मैं ऐसा घूमा, लेपल वेपल निकाला और चला गया। तो वहाँ से फिर 2 दिन के बाद वापस फोन आता है, मैम लाइक योर एटीट्यूड। ऐसे ओ रियली, ऐसे हाँ। तो फिर मुझे साकिब ने फोन किया, तो he says, ये वो पैसे थोड़े, मैं उस जमाने में शोज करता था, फैशन शोज, उससे गेट 10,000 रुपीज। तो दे सेड ओ विल पे यू अबाउट 5,000 रुपीज। अरे क्या है यार ब्रो, लाइक यू नो 5,000 आई गेट 10,000 एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने एक दोस्त को फोन किया था, बोला हे भाई तो 30 दिन शूटिंग करेगा महीने के, 5 into 30 कितने होते हैं? बोला 1.5 लाख। ओह शिट 1.5 लाख, लाइक या कम ऑन ब्रो डू इट। और 2000 में अर्ली 2000 में 1.5 लाख का थोड़ा मनी। लाइक हाँ शिट यार सही है यार ब्रो। ओके तो मैं गया, बट लाइंग, मैं वहाँ पे गया, मैंने साइन किया, और जैसे मैंने साइन किया ना, और मुझे आज भी याद है वो शाम का वक्त था। जैसे मैं आया, मैंने ऊपर देखा, बालाजी हाउस से निकला बाहर, गेट से बाहर निकला, ऐसे देखा सनसेट था, देखा मैंने ओह शिट, I saw the sun over there, I was like bro what a feeling, like ऐसे किसी ने मेरे सर से करोड़ों किलो का वजन उठा लिया, और ऐसा लगा कि एक ब्लेसिंग का हाथ आ गया सर पे कि डोंट वरी आई एम विद यू। You entered in lockup. Okay, and after 5 days you took exit from lockup. Yeah. What was the incident? And what? See, everything happens, then vanish, everything is done. But still, I'm curious to know कि what was the incident? What happened was How lockup happened? How things happened? I was doing one show, okay, and that show I had already signed up and all that. Okay. And I got a call for lockup. एकता जी से चेतन lockup, casting lockup. I said एकता जी लॉकअप में तो अभी डिफिकल्ट होगा क्योंकि मेरा अभी 1 हफ्ते बाद चालू हो रहा है। So okay, go for a week. So I went. So anyway, I was supposed to come. I was there for a week only. अच्छा। लेकिन 4-5 दिन के बाद ये औरतें इतना झगड़ा कर रही थी। सुबह को उठो तो गालम गाली सब चालू था। और मैं तो पहले 2 दिन शांत था। सब लोग मेरे को आके बोल रहे हैं कि गाइस चेतन थोड़ा सा कुछ कहा, थोड़ा सा यार कुछ, मैंने ओके यार ओके कर रहा हूँ यार। तो और क्या हुआ था, वन ऑफ द गर्ल, आई डोंट नो इफ शी वाज प्रिटेंडिंग एंड ऑल दैट, अंजलि उसका नाम था, पता नहीं ऐसा नाम ही, आई थिंक अंजलि था कुछ। वो प्रिटेंड कर रही थी, उसको रियल में उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो हम लोग डॉक्टर को बुला रहे थे कि डॉक्टर कम ऑन यार, कम ऑन, कम। और 5-10 मिनट 15 मिनट हो गया, शी वाज लाइक सिंकिंग है। तो आई गॉट डैम एंग्री के यार मर रही है लड़की। और तो वो टैंजर में चला गया। अच्छा। और उसके बाद तुम्हें पता है कि जब मैं वो टैंजर में जाता हूँ तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, यू नो। तो मैं तो जब ये डॉक्टर आया तो मैं फट गया उसके ऊपर। What the hell, you. तो फिर सब थोड़ा काम हो गया। तो उन्होंने फिर करण आ गया, उसने बोला कि चेतन I think you went a bit overboard with the doctor, and I don't think we can allow that. तुमने जेलर को टेलर भी लिखा था। हाँ वो सब मैंने कर दिया था। मतलब बदमाश तुम बचपन से हो, आज भी तुम अपना बचपन जी रहे हो। हाँ तो अभी उसमें क्या था यार, अभी कुछ ज्यादा नहीं था यार, पर दोस्ती थे। हाँ तो that was not the point। वो मैं थोड़ा डॉक्टर के ऊपर थोड़ा मैं भड़क गया बुरी तरह से। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तो थोड़ा आप आराम करके आइए। कल्टी ले। तो जैसे मैं बाहर गया
तो So what was the feeling जब बोला भाई आप कल्टी ले लो, मतलब बाहर आने के आई एम बाद? नॉट लाइंग, वो लॉकअप शो बहुत डिफिकल्ट था. हाँ, हाँ. ओके, That is the जैसे reason, मैं बाहर आया ना, Okay. इट्स लाइक एक्चुअली लॉकअप था वो ब्रो. मुझे बताओ कि मुनव्वर के साथ में क्या एक्सपीरियंस था, मतलब वेरी स्वीट बॉय, वेरी स्वीट बॉय. अभिषेक एंड मुनव्वर बोथ. अभिषेक पिछले शो में मेरा बेटा बना था. हाँ. तो यहाँ से बेकाबू. बेकाबू में बेटा बना था. तो आदि, मैं उसे आदि बुलाता हूँ. और मुन्ना तो लॉकअप में, मुन्ना एक लड़का था जो जैसे मैं लॉकअप के शो में से बाहर निकल रहा था ना, तो बोला, चेतन भाई आई लव यू, बाहर मरसू, मतलब बाहर मिलेंगे. तो और मिले हम, काफी बार मिले. बाकी किसी को मैंने देखा तक नहीं. खाली पायल की शादी में गया था. अच्छा. बाकी मैंने किसी को देखा नहीं, और मुझे कोई टाइम भी नहीं है इन लोगों के लिए. मुन्ना के लिए उन्होंने मुझे अपने एक इवेंट के लिए बुलाया था, दूसरे एक इवेंट के लिए बुलाया था. मैं दोनों में गया. तो वेरी फाउंड ऑफ इट. बिग बॉस सर्वाइव करने का इतने महीने with all these people bajaving your brains is not easy, yaar. Yeah. What is the dark side of our industry? मतलब dark side nowadays has got very dark, yaar. Like I don't want to name people or production houses and all, but some people don't pay, yeah, bro. And they become so besharam in that. Like, you know, they make you work and then they would just not pay you. Just do. Like in 2022, I did a show. I did 7 months. I worked for it for 7 months. 2 months they paid us. 5 months money they didn't pay us. We could not do anything. But this happened with a senior actor like you also. If with everyone, it happens. Luckily, all these years I've been working with Balaji. So payment is never an issue. But जैसे मैं बालाजी के बाहर काम करता हूँ, तो मैं डर जाता हूँ कि भाई पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम. और काम करा लेंगे, और फिर काम करवाने के बाद क्या होता है, उनके पास 90 दिन का तो पैसा रखा होता है हमारा. वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्या चला निकला. कैन यू बिलीव इट? लाइक वी ट्राइड सो मच. ये वो किया, इतनी रिक्वेस्ट की, इतने प्लीड किया सब लोगों ने. लोगों के पास कोरोना के बाद पैसे नहीं थे खाने के. लोग घर से नहीं निकले, पता है, 2-3 महीने के लिए, बिकॉज उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे. किसी के पिताजी वेंटिलेटर पे थे, मैसेज भेज रहे हैं उनको कि प्लीज पैसे दे दो, कुछ नहीं. सो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, हार्ट ब्रेकिंग. तुमने लीगैलिटीज का भी चेक नहीं की केस के लिए, या कुछ होता ही नहीं है? भाई तुम केस करोगे, कितने साल जाएंगे उसमें, तुम कितने पैसे डालोगे. अब कोरोना के बाद पैसे किसके पास है? हमारे लाइन में तो सब जो एक्टर्स हैं, दे फेस अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, यार. एंड प्रोड्यूसर्स शुड अंडरस्टैंड, यू कांट चीट पीपल लाइक दिस एंड गेट लॉस्ट. सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड हार्ट ब्रेकिंग, यार. जो 1-2 डेज के पर डे के एक्टर्स हैं, उनके साथ क्या बीत रही होगी. कैसे उनको जैसे हकला दिया है, हड़प, गेट लॉस्ट, ऐसा. बालाजी इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, यार. बालाजी इज लाइक, भाई मैं तो बताऊं ना ब्रो. हाँ, बालाजी के पैसे अब मेरा तक भी एक्सपीरियंस है. बालाजी के पैसे मुझे कोरोना के बाद भी, अभी जो ये इंसिडेंट हुआ उसमें भी मुझे कहीं से मैंने इन्वेस्ट किया था, वो आके आ जाते हैं मुझे हेल्प करने के लिए. तो इट इज लाइक अ ब्लेसिंग के अच्छे कुछ कर्म किए होंगे लास्ट लाइफ में, के या ये लाइफ में, कि बालाजी जैसा एक इंस्टीट्यूशन मेरे लाइफ में आया. एकता जी या और बालाजी का एक हाथ आ गया अपने सर पे कि भाई डोंट वरी, वी आर देयर. तो इट्स अ ब्लेसिंग, यार. यार मुझे ना ऐसा लगता है, मैं ना पहली बार खुश हुआ जब पद्मा अवार्ड मैम को मिला. तुमको पता है ना, पद्मश्री अवार्ड मिला है एकता मैम को. मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि है ना, पद्मश्री बॉलीवुड में किसी को आपने जो दिया वो सही दिया. एकता जी डिजर्व्स इट. हु एल्स विल डिजर्व इट, ब्रो. इतनी मेहनत करती हैं एकता जी, इतने लोगों की जिंदगी बनाई है. अब मेरी जिंदगी ले लो. 2021 तक मैं अपने बाल खींच रहा था कि यार भगवान कुछ दे दो, और फिर भगवान ने सही दे दिया, बालाजी दे दिया. और उसके बाद वो एक साल में मेरे पास बैंक में कुछ नहीं था जी. बाय द एंड ऑफ 2004 आई बॉट माई फर्स्ट कार, आई बॉट माई हाउस इन बैंड्रा, एंड आई गॉट मैरिड. एक साल में आफ्टर ज्वाइनिंग बालाजी. तो दैट इज द पावर ऑफ ऑफ बालाजी, एकता जी, कि शी इज मेड. और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनकी हर एक शो, कितने 17 शो हुआ करते थे. 17 शोज में से मतलब वो अबाउट 2000 पीपल तो वर्कर्स पकड़ लो. एक्टर्स भी कितने गुरु ही मानते हैं. हमारी तो गुरु है वो, माते. जिंदगी बना दी ना सबकी, गाड़ी वाड़ी सब लोग ने ले ली. या So you really owe your success to her in industry? Completely.
completely to her. If Ekta ji was not there, I don't know what I would have been doing right now. You know, right now, honestly, I probably would have not quit the industry, but I would not been Chetan Hansraj. And doing television and being a part of the television fraternity would have never happened only. मुझे एक बात बताओ ना, हम नेपोटिज्म और है ना ग्रुपिज्म की बात करते हैं, अगर हम एकता जी की बात करें तो फिर मुझे ऐसा लगता जीरो है जीरो जीरो हाँ। हर शो में एक नए पर्सन को रोल मिलेगा, एक नए इंसान को इंसान की जिंदगी बनेगी। हर शो में इतने सारे शोज हुए हैं, हर शो में नया लीड है, न्यू लीड, देखा है ना। एंड दैट इज ओनली द गट्स ऑफ एकता कपूर। अरे एकता जी के अलावा वो कोई एग्जैक्टली कौन किसको लीड देता है आजकल? ये हमारी इंडस्ट्री देख लो, बॉलीवुड सब अपने बेटे, चाचा के बेटे, मामा के बेटे, पता नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब दे देते हैं। बाकी तो खाली एकता जी है, शी ओनली लुक्स फॉर टैलेंट एंड वी वर्क वेरी हार्ड, यू नो के दिन के 20-20 घंटे 2-2 3-3 शो साथ में करना। इट वाज बट वो था कि भाई लाइफ में कुछ करना है। लोग रोने बैठ जाते हैं, अरे 15 घंटे हो गए, 16 घंटे 20। अबे मत करो ना, घर पे बैठो। जब काम नहीं है तो रोते रहते हो, भगवान काम दे दो। जब काम है तो रोते रहते हो, तो समझ में नहीं आता है कि क्या है। हाँ, समटाइम्स इट गेट्स टू मच, बट देखो कुछ भी चीज ना लाइफ में अगर मेहनत नहीं की ना तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, हासिल नहीं होएगा। लाइक इन दैट शो आई डिडंट गेट पेड, नो, दैट शो माय मदर इन लॉ पास्ड अवे एट 6 o'clock in the morning. 12 o'clock I'm at shoot because they had a telecast problem. And after doing all that, I was told to, मतलब उनका फ्यूनरल होने के बाद यू केम टू फ्यूनरल होने के बाद नहीं, हाँ, फ्यूनरल तो शाम को था, तो ये खत्म करके मैं गया। It was such a difficult time. And then when I didn't get paid, we were in dire straits. कोरोना के बाद मैंने 3 शोज किए थे, 2 शोज ने पैसा ही नहीं दिया, लिटरली 2 शोज ने पैसा ही नहीं दिया। एंड देन 3 years plus this out of money, man. And then luckily again from out of nowhere Balaji called me for Bekabu and I got little bit set. Now again one new show has come. So ऐसा कभी हुआ है कि पैसे जीरो हो गए और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, और मतलब जैसे बच्चे की स्कूल नहीं है या ऑफ कोर्स यार, ऐसा हुआ है? या पैसे नहीं है, हर एक्टर के साथ होता है ऐसा नहीं है। अगर आपका बाप बहुत बड़ा आदमी है तो फिर ठीक है, आपकी बात ही अलग है। या आप सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आपके पास करोड़ों पड़े, कोई वो अलग ही बात है। बट द आइडिया इज कि एवरीवन गोज थ्रू अ टफ टाइम इन लाइफ एट वन पॉइंट, यू नो, योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आदमी नहीं बनता जब तक उसका एक फाइनेंशियल इशू नहीं होता। You don't realize कि भाई, you know, it's a life journey यार। I'm going to touch 50 in June. तो 49 years मैंने सक्सेस, एक साल because of someone's bad karmas, I got into a financial crunch. But I didn't give up. In fact, एकता जी ने भी बोला कि चेतन, take the loan from Ascent. No, एकता, you know, I appreciate you, thank you, but I can't. मेरा दिल ही नहीं करता है ऐसा। इसे ऊपर वाला संभाल लेगा। So nice. So yeah, bro, that's what it is. Owe everything to Ekta ji and Balaji. So yeah, it's been a great ride. तुमको ऐसा लगता है कि हाँ, इंडस्ट्री में जो है जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपका बोलबाला है, और उसके बाद यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, जो भी, मतलब मुझे ऐसा देख भाई, ऑनेस्ट तो यही है कि जिंदगी में ना कोई तुम्हें पूरी जिंदगी तो संवारने नहीं वाला है, यू नो। तो ये रियल है इंडस्ट्री आप, और यहाँ पे तो रोज नए लोग आते हैं, नया टैलेंट आता है। तो इफ यू डोंट कीप ऑन री इन्वेंटिंग योर सेल्फ एंड वो आप पुराने ख्यालों में होंगे कि भाई मैं ये था और ये ब्ला 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 ब्ला, तो यू विल एंड अप बीइंग फॉरगॉटन वेरी वेरी क्विकली। तो चेतन, मुझे एक बात बताइए कि आपका सबसे फेवरेट रोल अब तक का कौन सा रहा जो आपने प्ले किया? मेरा सबसे फेवरेट रोल रहा है, 2-3 रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली कहानी गर्गर का साशा, माय फर्स्ट रोल कुसुम में जो था गर्व का, वो भी बहुत अच्छा था। जोधा अकबर वाज सुपर्ब, आदम खान का रोल बहुत बहुत प्यारा था। एंड नाउ आई एम फीलिंग द शो आई एम डूइंग राइट नाउ, अशोका का बिंदुसार, विल बी सुपर्ब, लिटरली सुपर्ब। इसमें मदर कौन बनी है तुम्हारी?
तो जैसे ये फनी है कि चंद्रगुप्त मैंने वो शो किया था चंद्रनंदिनी, गंदनंदिनी। जहाँ पे मैं मलई कदू का रोल प्ले करता हूँ, हु हैज लव इंटरेस्ट कॉल्ड हेलेना, हाँ हाँ, जो एंड में जाके चंद्रगुप्त से शादी करती है। हाँ लेकिन इस शो में मैं और इस शो में मेरी माँ बनी है हेलेना अच्छा। और वो रोल प्ले कर रही है प्रीवियस शो की धर्मपत्नी रक्षंदा जी। तो आजकल मैं रक्षंदा को मॉम मॉम बुलाता हूँ तो वो बहुत चिढ़ जाती है कि हाउ डेयर यू कॉल मी ऐसे। मॉम तो आप मॉम ही हो ना। हाँ, उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता है। लेकिन आप हो तो मॉम। अमेजिंग एक्टर, Yeah, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग and एक्टर very funny and very humble and व्हाट अ वन लाइन शी हैव, या बाप रे। शी इज मां। या किस्सा सुनो ना जी। तो रक्षंदा ने मेरे को फोन किया, चेतन आई एम प्लेइंग योर वाइफ। आई लाइक ओ वाओ, हाँ ऑफ कोर्स। बालाजी में अगर तुम्हारी वाइफ बनाना है किसी को तो ऑब्वियसली मेरे बारे में ही सोचेंगे ना। I said wow यार, so he said you are playing Chandragupta ना। I was like sorry यार रक्षंदा, actually I am playing Chandragupta's son। तो मतलब तुम मेरी माँ हुई। Oh God, आधा घंटा सुनाया उसने मेरे को, how dare you। अरे मैंने क्या किया यार। So मुझे एक बात बताइए चेतन कि खुशहाल पंजाबी जो अभी नहीं रहे, गॉड ब्लेस हिम, तो खुशहाल पंजाबी को सबसे पहले आपने देखा, क्या था वो पूरी स्टोरी, क्या थी, मतलब कैसे क्या हुआ? I spoke to him on the 23rd of December. Okay. And just like he just called me कि what's up, क्या हो रहा है and all that, and just general normal talk. I didn't never realize कि something like this would happen. Yeah. 3 days later, he just passed away. He took his own life, and it was like a shocker. My whole he was one of my best friends. Yeah. He took to you to Balaji. He took me to Balaji. So you know. एंड हम लोग ने साथ में इतने सारे एडवेंचर शोज किए हैं, बाइक राइड्स पे गए हैं, ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ फन। तो एंड फॉर हिम टू डू दैट वाज जस्ट लाइक व्हाट इज तो पता कैसे चला, मतलब क्या हुआ था वो स्टोरी? उनके डैड एक दिन आई थिंक आई वाज एट माय हाउस ओनली, एंड देन माय फोन वाज इन द रूम, एंड माय सन वेंट इनटू द रूम एंड ही सेज डैड योर फोन इज रिंगिंग, 3-4 मिस कॉल्स। माय अदर फ्रेंड आल्सो कॉल्ड अप, कुशाल्स डैड का 2-3 मिस कॉल आ गए। तो मेरे को थोड़ा लगा ये क्या हो गया यार। तो आई फोन उठाया, फोन किया तो मेरे दोस्त को, तो उसने बोला कि यार जस्ट कम बिकॉज वी आर अंडर कुशाल्स हाउस एंड आउटसाइड हिज डोर नाउ इज नॉट ओपनिंग। So then his dad came on the line. He says, "Dada, you know anyone, any chabi wala or something like that?" I said, "Uncle, yeah, Hill Road पे chabi wala है." He said, "Can you go and find out like if he's still around?" And it was 10:30 at night, or 10 o'clock at night. तो मैं रश किया वहाँ पे हिल रोड पे, लकीली वो जा रहा था वो चाबी वाला, तो मैं उसको पकड़ के लेके आया वहाँ पे, और उसने चाबी बनाई वहाँ पे बैठ के, और अंदर से वो म्यूजिक का कुछ आवाज आ रहा था, तो हमें लगा कि maybe not well or something like that. Then he opened the door, and then all I remember is Kushal's dad, shouted like that, and then मतलब हॉल में ही? हॉल में, yeah. My friend तो मैंने hugged him and all, he said thought कि he is still whatever. तो then we brought him down, and then by the time they want to give him a CPR, then when the body becomes old like that, so very tough, bro. It took about 6 months to come out of that. Ke yaar, that visual, So what was the funniest moment with Kushal? So there was a moment where we were going on this road trip, and एक show था Fun on the Run. अच्छा, Fun ZTV पे आया था, Okay. and we were traveling. It's like amazing race. We were traveling all around India, and एक था कि राजा जी की बावड़ी एक जगह पे था, तो we had to go down and एक ग्लास था और वो भर के एक बकेट भरना था। तो पहले देख दो बार तो मैं गया नीचे, कुछ 100 स्टेप थे, नीचे गया, ऊपर आया, तो बैठ ही गया, लेट गया वहाँ पे, मुझसे नहीं होगा भाई, forget it. Oh God, this guy was so physically fit, up and down over there. और फिर वहाँ पे आके बोला तेरे को पानी पीना है? हाँ जी दे। एक सिप लिया तो पूरा बावड़ी का पानी था, I breathed through it out,
So it was like that hazard moments, and but I can't like how you say enact out things, na? Like all the style and all the masti and all. Like we all remember, yeah. Like So what is your advice कि आपको जब मतलब see, जब my advice to depression होता anybody है, is that always have hope, man. Don't give up hope. Whatever the situation is, however difficult life situation is, that don't give up hope. There always, if you are around, there's always a fighting chance. If you end your life, there is no chance only then. So just that, always keep hope, keep your hopes up high. चेतन मुझे बताइए कि ये जो एंगर इश्यूज जो थे या एंगर जो है उसने आपका कितना नुकसान किया और उसमें कितने फिर आपको पता चला कि इतने चेंजेस और ये बनता है. Yeah, anger gets you in trouble. So as you grow older, you realize that yeah, when you are a young, angry man, it doesn't really help you, in life. So it's all a part of learning experience. Everyone has like that. At one point when I was young, my anger used to be my Achilles heel. So, but I learned from that कि भाई anger से only thing you can harm is yourself. तो सबसे बड़ा एंगर से आपका जो नुकसान हुआ जहाँ से आपने ये सीखा कि भैया नहीं अब तो चलो लेट्स This lockup show. ओके And I did that show because of my anger. I got removed from that show. And I felt really bad. Okay, shit, why did I lose control of my... So since that time, I've been chanting and all that to get rid of my anger and be on a most, like, sulja hua path. So it's like, you can make mistakes, but you should learn from it. So I'm learned from it. I learned from my mistakes and like, like anger is no good for nobody. How chanting and spirituality helps you? It helps me to focus and have hope in life. Okay. When there are difficult times and when you at least it helps me when I chant that it align myself to a point where I have the confidence that things can work out. Okay. Otherwise without any spiritual exercise it's difficult to go through a tough time. Okay. Best version of you is being called forth when you chant Namyo Renge Kyo. At least, but I that's why I believe in that. It's given me the direction and alignment to do that. ऐसा कौन सा रोल है जो आप करना चाहोगे आज भी आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए? Something like a Scarface kind of a role. Okay. Or a Count Dracula. Oh. Yeah, I would love to play that. I'd played once that role and it made me like it was too good. Okay. So that kind of a role, like a Count Dracula's role, Okay. in a big film would be amazing. Tell me something, Chetan. How your wife have an impact in your life? She's changed my life completely, yeah. Like, she's always been there for me. She always supported me through tough times, through Her good name is times. Lavinia. Lavinia, yeah. She's always been there for me, yeah. That's the thing. Like, when I proposed to her also, I didn't have much money. So I made a silver होता है ना अपना एल्यूमिनियम का फॉइल उसका रिंग बड़ा नहीं था पैसे क्या करूँ एल्यूमिनियम के फॉइल से मैंने रिंग बनाई उसको पहना दी and she said yes. So that was the best part of it, and she always supported me even through tough times. As an actor, you go through tough times and all that, but she's always been there She supporting should get me. award to JLofy you. अरे बाप रे और there are Oscar award. Oscar award actually. So Chetan, अभी let's jump to rapid fire round. हाँ. Okay. बांद्रा में सबसे पुराना food outlet कौन सा है? I guess it would be Lucky or something. इतने साल से Correct. So Bandra or Paris, if you got an Bandra. option to stay. Bandra. One thing if you wanna correct in Bandra. Bandra में करेक्ट करना है तो रोड्स एंड ट्रैफिक. तो चेतन हंसराज एक बात मुझे बताओ आपके बांद्रा बॉय होने के फायदे और नुकसान क्या है? फायदे तो ये है कि यू गेट टू मीट सम अमेजिंग पीपल. गर्ल और पीपल? People. Best. अच्छा. Best kind of crowd in India अच्छा. would be in Bandra. Okay. Great coffee shops, great places to eat. Okay. अमेजिंग पीपल. दो नुकसान ये है कि आपको रास्ते बहुत खुदे हुए मिलेंगे आपको यहाँ पे. जैसे टाउन में नहीं मिलते तो वैसे यहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको. When was the last time you cried? My mother-in-law passed away that time. I cried. And a rumor about you which is not true. That he's very arrogant and very very egoistic and all that, which is absolutely not true. You know me. Yeah. I'm completely opposite of that. Correct. How you handle your trollers or haters?
I let them talk, yeah, what they want to talk. ऐसा कोई ट्रोल जो तुमको याद हो और जो तुमको बहुत बुरा लगा हो? ये लॉकअप के बाद हाँ। जो ट्रोल मशीन चालू हो गई थी उन लोगों की, हम्म। उन्होंने बहुत बकवास की, पट 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 जैसे पट पट, मतलब कुछ भी बोलने लग गए यार, गाली वाली आफ्टर दैट शो, यू नो, सो बहुत बोलने लग गए। बोला उन लोगों ने एक दो दिन बहुत बकवास की, उसके बाद मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया, तो उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। वेस्ट हो गई। 2 चॉइस दूंगा जिसमें से आपको एक ही सेलेक्ट करनी है, सलमान खान और एकता कपूर। I think Ekta Kapoor has done so much for me, and her blessings are always with me. Okay. So, of course, Ekta. But yeah, Salman Bhai also is a loving friend. So. पलटी। No, but एक- no, एक- but if I have to choose, yeah, obviously, One. Ekta ji, obviously, अच्छा, यार, because अच्छा। हमें बनाने वाले तो वही हैं. हाँ। So that's it for the day, Chetan. Thank you, KK. Fabulous, fabulous interview. Thank you so much, Yeah. Chetan. It was fun having chat with you, and keep inspiring us and keep working and be us proud. Yes, bro, 100%. Thank you, KK. Thank you so much.